Good morning, everyone. A very good morning. I hope now I am audible. A very good morning, W beta. खुश रहिए. Good morning, Govind. A very good morning, Bhavya. I hope my voice is clearly reaching out to you. So this is our last leg of the lectures. Because of my ill health, there was a gap in the lectures, but now we'll continue and we'll be finishing everything off within this week. Okay, and at most today's lecture and tomorrow's lecture and will be done with ecology and environment. A very good morning, Astha beta. Bhavya. So today we'll be looking at some of the technologies which are being used to control the climate change. Aravind, a very good morning. A very good morning. Everyone settle down. So there are certain terms which are often in news and are related to bioengineering. And these technologies are being implemented in order to tackle the climate change, and you can get a question on these. W beta, my health is like I'm not fully recovered, but I'm good. At least I can try to take lectures because I'm coughing less and my fever and everything else is like under control. But yeah, I have certain things which are visible. Probably I cannot open my mouth properly because whole of the thing is infected. Okay, but along with chest infection and the fever, some of the visible symptoms are there, but everything is gonna be fine. ठीक है, मौसम का और बाकी कुछ हद तक मेरी लापरवाही का नतीजा. Just wanted to stretch a little more so that we can complete, but I could not achieve that. तो ज़्यादा stretch करने पे इनफैक्ट चीज़ें खराब हो गई. But still, this week we are gonna complete whole of environment and ecology, and still you have time. For some of those who are going to appear for the exam, still you have time, you can complete this segment. And I expect that the whole of things that I have covered, you'll get few questions from these areas. If from static, you'll get almost all the questions. You just have to add the current affairs and you'll be good. Okay, so we'll be talking about 5 big plans which are being implemented. Ha, W beta. Ha, Deep beta, good morning. I tried everything that all of you had suggested and I'm thankful for this thing. ठीक है, आप लोगों के जितने भी आप लोगों ने बताया था आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू उपाय, so everything helped. I tried doing that as well along with the medication. So I'm all thankful to everyone, whoever had suggested. Thank you very much. Okay, so let us come back to this thing, the global warming related. So some of the steps to tackle the global warming. To tackle the global warming. Okay, if we look at these steps, some of them we had seen. ठीक है, हमने कुछ कुछ चीजें देखी भी थी कि क्या किया जा सकता है. मे बी वी कैन शूट एरोजॉल्स इन द स्पेस, जिससे हम बारिश करवाना चाहते हैं. वो क्या है कि एरोजॉल्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक. बट नाउ the scientific community is of the opinion that if we cannot completely stop the global warming phenomena, we cannot check the insolation process, then they are suggesting that we can shoot small mirrors. Okay, so shooting some of these mirrors into the space. और यहां जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा वो आपको समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग. ऐसा एक सवाल बन सकता है जहां वो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन. तो शूटिंग द मिरर इन द स्पेस इज पॉसिबल. ओके, इसके बारे में आपको जानना चाहिए. सो द जियो इंजीनियर्स आर प्लानिंग दैट मे बी सम ऑफ द स्मॉल mirrors can be sent to the space. Okay, and we can position it strategically between the sun and the earth so that the insolation that is
coming from the sun will get reflected back. Okay, और ये बहुत ही आसान होगा ऐसा नहीं है. Okay, ये बहुत ही आसान होगा. So they are planning to the scientific community. Okay, the scientists want to place a big mirror into space. That is a mirror of size like Greenland, बहुत ही बड़ा mirror. Okay, in the space, so that it can be positioned in a way that it reflects back part of the sun's insolation that tries to enter Earth. Okay, so place a big mirror into space, that is a mirror size like Greenland, which will be placed between Earth and Sun. To reflect back the insolation. Okay, because we want faster results. IPCC tells कि the climate change is real, it cannot be changed. So drastic है ये. ठीक है, आप इसको देख के यही सोचेंगे कि ये पॉसिबल भी है क्या इतना बड़ा. But scientists are trying. The reason is that it has become so difficult to manage the climate change and global warming, and the ill effects are visible. अभी आप climate को अपने weather को ही surrounding में देखेंगे तो it is every year something different is happening. So overall climate में change आने वाला है. ठीक है, अगर 20-25 साल में हम देखते हैं हर साल और ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा गर्मी, हर साल कभी भी बारिश हो रही है, extreme events. So when this climate data of last 25-30 years will be collected, you'll see that actually the climate has changed in our place. ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, climate बदल चुका है. ठीक है. Now the second thing that they want to do is to copy a volcano. Okay, बायो इंजीनियरिंग से ऐसा करने का प्लान है. जियो इंजीनियरिंग मोस्टली इन्वॉल्व या बायो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व करके तो कॉपिंग है वॉल्केनो. ओके, सो अब वॉल्केनो क्या करता है? whenever there is a volcanic eruption, okay, whenever there is volcanic eruption, so volcano shoots clouds of sulfur that covers the sky. Plus it blocks sunlight. So some of the extraordinary things that the scientists want to do. अब कॉपी है वॉल्केनो में क्या है, आपको क्लाउड्स सल्फर का कवर करता है, तो इसको हम मिमिक करना चाहते हैं. वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वी क्रिएट एनवायरनमेंट. ओके, सो they artificially want to inject the sulfur into the atmosphere so that it can block the radiation. Okay, so artificially injecting the sulfur in the atmosphere to block the solar radiation. Okay, so this is something which is mimicking. एक ऐसी चीज जो नेचर खुद करता रहता है जिससे टेम्परेचर्स पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, नाउ this will, what they'll do, they'll scatter the sun's light
ओके, इनटू स्पेस। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि डायरेक्टली सल्फर को किया जाए, but similar properties are also seen in hydrogen sulfide. Okay, so many scientists believe that it can be achieved using hydrogen sulfide. Using hydrogen sulfide. Okay, so many of the scientific community believe that हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं तो इससे ज़्यादा फायदा होगा। ओके, एंड ये चीज़ क्या है कि हम किस लेयर में करना चाहते हैं, अगर हम देखें, सो सल्फर डज नॉट हीट द स्ट्रेटोस्फेयर मच। और ये कहाँ पे है? इट सल्फर डज नॉट हीट, sulfur does not play a role in the atmosphere, around stratosphere. So scientists think that scientists want to inject this thing into the stratosphere. Okay, we are not going to do this thing in the troposphere, क्योंकि troposphere में इसका सल्फर का एक फॉर्म जो है SFL6, that is a greenhouse gas, it can become in fact dangerous. लेकिन SFL6 की अगर हम बात करते हैं, ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो वो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नियर द सरफेस ट्रोपोस्फेयर में है, वहां पे नहीं है। ओके, सो दे वांट टू यूज दिस थिंग देयर। सो इंस्टेड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड maybe we can use this one. Okay, now second thing, जैसे cloud का आप जानते हैं कि it reflects back a lot, but we don't want clouds everywhere. तो cloud seeding is not a very good thing which we can do. So scientists are planning to whitening of the clouds. Okay, so whitening of the clouds is another thing that scientists want to do. Okay, so this thing will help to reflect back the insolation, reflect back the sunlight better. And they are also working. Like I said कि prelims में आपका ज़्यादा chances है कि ये सारे options ही आपको directly दे दिए जाए कि if there is mirror in space then global warming can be checked, whitening of the clouds can help. Okay, तो वो आपको which of the following can help to check the global warming देके ये options दे देंगे, तो question can be more easy, but sometimes they can go into the details also that we are discussing. Okay, so to spray, इसके लिए क्या कर सकते हैं? In order to do this thing, scientists believe that if we use this sea water spray, okay, into the clouds, then it can be achieved. Okay, so scientists want to use sea water sprays
to achieve this thing. Okay, how exactly they'll do अभी तक क्लियर नहीं है, तो रिसर्च चल रहा है, बट जो चीजें न्यूज में आती है उससे आपको ये पता चलता है कि ये एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं. दे वांट टू यूज सी वाटर स्प्रेज. ओके, एंड दे बिलीव कि इफ वी आर यूजिंग द सी वाटर स्प्रेज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो उससे क्या होगा, सी वाटर हैज सॉल्ट. ओके, so salt remains in the cloud and water तो evaporate होगा. ठीक है, water forms the clouds. So these are more white. Okay, and how they want to achieve it? They want to use wind powered ships to do this thing. ठीक है, तो विंड से क्या है कि जो शिप्स चलती हैं वैसे को क्या है नीचे छोड़ दिया जाएगा और वो क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे. बट दिस टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच स्टिल इज इन द नेसेंट फेज. अभी कोशिश की जा रही है, ये हुआ नहीं है. ओके, दिस इज समथिंग अब बाकी क्या है, ये भी नहीं हो पा रहा है. तो ओशन बहुत बड़ा है, अगर वहां बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन हो, ठीक है, ग्रीन, विच कैन एब्जॉर्ब द CO2 मोर इफेक्टिवली. ओके, तो इसको करने के लिए साइंटिस्ट मानते हैं कि आप आयरन दीजिए. ठीक है, ऐड आयरन इन द वाटर. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो नियर द सरफेस रहते हैं उनको आयरन चाहिए होता है. दे वांट अ लॉट ऑफ आयरन एंड दे विल डू अ लॉट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वो आयरन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो जब मर जाते हैं और वो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहते, व्हेन दे डाई, सो दैट ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम्स द फाइटोप्लैंक्टन, एवरेज लाइफ छोटी मछलियां जो खाती है फाइटोप्लैंक्टन को, उनका 30 to 60 डेज का एवरेज लाइफ है. तो वो जब मर जाएंगी तो क्या होगा, वो अंदर चले जाएंगे पानी के अंदर, या बैक्टीरिया खा जाएगा. तो कार्बन स्टोरेज अपने आप ही 60 डेज साइकिल मान के चलिए, उसमें एवरेज में कार्बन और ज्यादा तेजी से स्टोर होगा. ठीक है, ये क्लियर हुआ है सभी को. सो सीड द सी विथ आयरन. ओके, अब इसका क्या मतलब है, फाइटोप्लैंक्टन्स नियर सरफेस. have affinity for iron. Okay, now seed the iron, seed the sea with iron. So more phytoplankton near surface. So more photosynthesis. More CO2 capture. ठीक है, ज्यादा CO2 वो यूज कर पाएंगे, और ये ईटन बाय ऑर्गेनिजम्स, eaten mostly by कर लीजिए, mostly by organisms that live for 60 for average 30 to 60 days. Okay, when they die and carbon remains captured.
ओके, बैक्टीरिया उसको खाएगा, कुछ भी खाएगा, तो वो कंज्यूम होके ओशन में ही कैप्चर हो जाएगा. बट दिस इज समथिंग विच हैज मोर रेपरकेशन. ये बेस्ट ऑफ द मेथड्स नहीं है, क्योंकि ओशन लाइफ को आप फिर भी थ्रेट करेंगे. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मैनेज होगा, बट बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑल्सो व्हाट इट डज, उससे भी CO2 रिलीज होता है. तो पानी की मात्रा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ओशन को नुकसान होगा. बट स्टिल दिस कैन बी डन. सो दे आर सम ऑफ द अल्टरनेटिव्स ऑन विच द साइंटिफिक कम्युनिटी इज वर्किंग. तो आपको जानना चाहिए. सीडिंग द सी विथ आयरन. ओके, नाउ फेक ट्रीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा. बिल्डिंग अप ऑफ द फेक ट्रीज, it is being utilized in many of the places. Building up of fake trees. So what is this? This is more common. So I hope that some of you are aware at least. इसमें क्या होता है? दीप्त, डब्लू, अरविंद, गोविंद, आस्था, भव्य, एवरीवन, इसमें क्या होता है? एनीबडी हैव हर्ड ऑफ? दीप्त, सुना है आपने? This is an indirect method of not a very good in terms of, because it is not investment friendly. Okay, what it suggests that these artificial trees can be built everywhere. Okay, where the release of CO2 is more. ओके भूमि बेटा, आपका कुछ छूट गया है, जल्दी से लिख लेंगे. ओके, आर्टिफिशियल ट्रीज के बारे में नहीं सुना है किसी ने? सो उसमें क्या करते हैं कि पेड़ ऐसे मटेरियल का बनाते हैं विच हैज द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेकिंग इट इनटू सॉलिड फॉर्म. ठीक है, कार्बन को वो सॉलिड फॉर्म में अपने पूरे बॉडी के ऊपर चिपका लेता है. एंड देन दैट कार्बन कैन बी सेक्वेस्टर्ड. उसको क्या है कि आप कहीं दबा देंगे, दफना देंगे, तो कार्बन हमेशा के लिए जमीन में रहेगा. बट दैट इज मोर कॉस्टली प्रोसेस. ओके, सो होल ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ सम रेजिन. द ट्री is made up of some material that can react in the atmosphere and capture CO2 and convert it into some solid form. That can be sequestered later. Okay, but the problem with this one is it is very expensive and labor intensive. Technology intensive. And in itself the transport and everything is energy intensive. तो ये क्या है कि जितने प्रॉफिट्स होंगे टोटल प्रॉफिट नहीं होगा. या तो आप पेड़ ऐसी जगह पे बना के लगाएं जहां उसको वही गड्ढे में डाल दिया जाए, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम ना हो. ओके, एल्स द प्रॉफिट्स दैट कैन बी जनरेटेड विल नॉट बी मच.
ओके, सो दीज आर ऑल अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो अगर ज्यादा फायदे हैं नुकसान कम है तो हमें इंप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि सिर्फ फायदे ही फायदे ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप करेंगे तो सिर्फ फायदा होगा। ओके, सम नेगेटिव इफेक्ट्स विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आप आईएएस बनेंगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। ओके, बट फॉर सम ऑफ द टाइम योर सोशल लाइफ इज गॉन। ओके, जो आपको बहुत अच्छी लगती थी चीजें, वो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे, तो सम ऑफ दोज थिंग्स आर देयर दैट कैन हैपन। ओके, so everything that is good has a bad part as well, but we try to use that thing if that is feasible, that is more profitable than what loss it can bring. ठीक है, ये वाला क्लियर है। इट हैज मेनी ड्रॉबैक्स बट स्टिल साइंटिस्ट बिलीव जितना नुकसान है उससे ज़्यादा फायदा है, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ प्रीलिम्स में ही हमने बहुत सारे क्या है कि इसके बारे में देखा है। नाउ समटाइम्स इफ वी लुक एट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, you get some of the questions based on the macronutrients and micronutrients that are important for plants। ठीक है, तो हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो है। और ये मैंने इसलिए भी पढ़ा है सो दैट इफ यू सी सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज, ओके, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बिकॉज साइंटिस्ट आर ट्राइंग डिफरेंट वेज टू अचीव सम ऑफ द थिंग्स विच कैन हेल्प in reducing the problem। okay, now the elements required in plant growth, so there are two types, macronutrients and the another is micronutrients। okay, so micronutrients are those which are required in very lesser quantities। ठीक है, मैक्रो क्या है कि इनकी मात्रा ज्यादा होता है। ओके, मैक्रो इज समथिंग दैट इज मोर needed more, इसका मतलब needed in more quantity, more quantity less quantity। so you'll find questions on this every year। you see that some of the macronutrients का फंक्शन पूछते हैं, किस में यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा प्लांट से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो वी हैड सीन डिफरेंट टाइप ऑफ दीज, सो इस एरिया से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ यू हु हैव डायरेक्टली रेड बायोलॉजी, उनको पता भी होगा, बायोलॉजी में भी ये कॉमन है। बट इफ यू लुक एट लाइफ फॉर्म्स में कम क्वेश्चन आता है, इन्हीं पे आता है। तो वेदर इट इज एनवायरमेंट और बायोलॉजी ओवरलैपिंग है, बट विल कंसिडर इट एज part of the environment and will deal here only so that you'll be aware about these। So what are the macronutrients? अब जो फर्टिलाइजर में दिया जाता है वही है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एनपीके सब जानते हैं, एनपीके तो सुना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आपने, एग्रीकल्चर चैप्टर में। ओके, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, एनपीके तो यही है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ओके, दीज आर, हाँ भव्य बेटा, वेरी गुड। एंड नाउ इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
और इनके अलावा सब माइक्रो है। माइक्रो का नाम बैठ के रट्टा नहीं मारेंगे कि दिस इज नॉट। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि हाँ डब्लू बेटा वेरी गुड, वो क्या है माइक्रो वाले का भी लिस्ट रट रहे होते हैं। जब आपको पता है कि मैक्रो 6 हैं तो इसके बाद जो भी है वो क्या है, माइक्रो में आ जाएगा। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी हियर ओनली। अब जितना भी है जिंक है, मैंगनीज है, जो आप जानते हैं, बोरोन, क्लोरीन, मोलिबेडनम, बहुत सारे हैं। ओके, निकल, सिलिकन, तो लिस्ट गोज ऑन। तो उसमें हमें नहीं जाना है, बट वी नीड टू नो अबाउट देम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, क्यों चाहिए होता है? ऑल द फंक्शन, ऑल द प्रोटीन, हमारा शरीर प्रोटीन का बना है, प्लांट का बॉडी प्रोटीन का बना है। न्यूक्लियस जो है उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन है। तो बेसिस ऑफ लाइफ इज नाइट्रोजन। क्लोरोफिल जो प्लांट को चाहिए होता है बेसिक लाइफ फॉर्म के लिए, वो क्या है, नाइट्रोजन पे चलता है। सो दिस इज समथिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो विल बी लुकिंग एट रेलेवेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में इनका क्या काम है, क्यों ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, विल बी लुकिंग एट those aspects. Okay, these 6 you'll definitely find a question from कार्बन। बेटा न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फॉर्म में यूज नहीं होता, दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में यूज होता है वो। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दीज। ठीक है, so carbon is something that is not required in large quantities। वो पार्ट ऑफ वो प्रोसेस है जो खाना बनाने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट इज दैट इज इनसाइड द टिश्यूज। ओके, शरीर के टिश्यूज में जो हो, कार्बन क्या है, टिश्यूज का पार्ट नहीं है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है। वो साइकिल में एटमॉस्फेयर से आता है जाता है, खाना बनाने में यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट को आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, सो दैट इज पार्ट ऑफ दिस। तो इन एडिशन कार्बन हाइड्रोजन भी बहुत जगह आपको दिखाई देगा बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, carbon and hydrogen of course are necessary because they form carbohydrates, which is also essentially part of the EA, but most important ones these 6. Okay, so write down nitrogen is essential constituent. Nitrogen is essential constituent of proteins, special constituent of the proteins, a special constituent of the proteins, and is present in many other compounds and enzymes, and present in many other compounds and enzymes which are involved in which are involved in the plant's metabolism, which are involved in plant's metabolism. Okay, full stop. Nitrogen helps in the absorption of light. Nitrogen helps in the absorption of sunlight during photosynthesis. Nitrogen helps in the absorption of sunlight during photosynthesis.
Nitrogen helps in the absorption of sunlight during photosynthesis. Absorption of sunlight during photosynthesis. Absorption of sunlight during photosynthesis. Okay. Nitrogen also helps in the growth of plants. Full stop के बाद लिखिए. Nitrogen also helps in the growth of plants. Nitrogen also helps in the growth of plants. Comma. It is part of the chlorophyll. It is part of the chlorophyll which imparts color to the plant. क्या है? ग्रीन कोई दिखता है, कोई येलो दिखता है, ठीक है, पत्ते जो अलग अलग कलर के दिखते हैं तो क्लोरोफिल के कलर से रिलेटेड. imparts color to the plant. Okay. Now next one is phosphorus. अब फॉस्फोरस क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब नाइट्रोजन की वजह से कर लेता है, बट डायरेक्टली सनलाइट को जो एब्जॉर्ब किया है उसको तो वो खा नहीं सकता है. इट नीड टू फिक्स इट इनसाइड द बॉडी इन ए यूजेबल फॉर्म. सो फॉस्फोरस हेल्प्स इट इन मेकिंग इट इन ए यूजेबल फॉर्म, जिसे हम क्या है फॉस्फोरस फिक्सिंग इन द प्लांट्स कहते हैं. ओके, सो राइट डाउन फॉस्फोरस helps to fix the received sunlight. Phosphorus helps to fix the received sunlight. Comma, and also helps in the assimilation of the carbon. And also helps in the assimilation of the carbon. Full stop. It is responsible for transfer of the photosynthetes. फोटोसिंथेट्स यानी जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सनलाइट को इसने फोटोसिंथेसिस करने के बाद में जो फूड का फॉर्म है उसको बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना भी फॉस्फोरस की वजह से होता है. सॉरी. ओके, so only it can do that thing. So write down the phosphorus. सॉरी, ये फॉस्फोरस के फंक्शंस नहीं होंगे, ये पोटाशियम का फंक्शन है. ठीक है, ये फॉस्फोरस की जगह हेडिंग पोटाशियम डाल दीजिए. ठीक है, मैंने जितने फंक्शन बताए अभी ट्रांसफर वाले से मुझे ध्यान है. दिस इज पोटाशियम नॉट फॉस्फोरस. हेडिंग चेंज कर दीजिए. दैट इज पोटाशियम. जो भी पॉइंट्स आपने लिखे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज पोटाशियम. ओके, बारिंग द ट्रांसफर. पहली लाइन जो आपने लिखी है उसमें दोनों का रोल है. ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट. ओके, यानी फिक्सिंग ऑफ सनलाइट की बात हो रही है. फिक्सिंग ऑफ सनलाइट. जो पहली लाइन लिखी थी आपने वो फॉस्फोरस में भी आएगा, बट पोटाशियम रेस्ट. एसिमिलेशन के बाद वाले से फंक्शन सिर्फ पोटाशियम का ज्यादा है. ओके, फॉस्फोरस पे हम फिर आएंगे. आप हेडिंग सिर्फ बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नॉट ए प्रॉब्लम. पोटाशियम कर दीजिए उसे. पोटाशियम ऑल्सो हेल्प्स in the transfer of photosynthetes. Potassium also helps in the transfer of photosynthetes to plants' body parts.
टू प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स लिख लीजिए, प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स which helps in the growth, which helps in the growth. ओके, पोटाशियम का एक नेचर है, जब आप सुई लगाने जाते हैं, लगवाने जाते हैं, ओके, यू मस्ट वेन एवर यू आर गोइंग, वो क्या लगाते हैं, ओके, वेन एवर यू हैव डिहाइड्रेशन, क्या होता है, सो आइदर दैट इंजेक्शन विल हैव सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, बिकॉज सोडियम और पोटाशियम की क्या कैपेसिटी है, दे कैन एब्जॉर्ब वाटर टुवर्ड्स देम, ओके, तो सोडियम तो बहुत प्लांट्स में होता नहीं है, ठीक है, तो वो काम पोटाशियम करता है प्लांट्स के लिए, जो ह्यूमन बॉडी में सोडियम करता है, इट हेल्प्स इन द वाटर एब्जॉर्प्शन, इसीलिए आपको चीनी और नमक घोल के पी लो कहते हैं, क्यों, बिकॉज दैट नमक हैज सोडियम, द सेम फंक्शन दैट सोडियम डज फॉर अस, दैट इज पोटाशियम जो प्लांट्स के लिए करता है, दोनों का काम एक जैसा है, प्लांट में पोटाशियम ज्यादा एक्टिव है, ओके, सो पोटाशियम का ही नेक्स्ट फंक्शन लिखिए, द पोटाशियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रेगुलेशन इन प्लांट्स, the potassium has an important role in regulation of water in the plants, and it helps the uptake of water, ठीक है, रूट्स पानी ऊपर कैसे खींचते हैं, पोटाशियम की मदद से, and it helps in the uptake of water, okay, अब वाटर एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करता है, इसका मतलब क्या है कि अगर पोटाशियम है बॉडी में तो फ्रॉस्ट अगर आ गया, पानी रखा हुआ, अगर पानी है तो फ्रॉस्ट अटैक करेगा ज्यादा, क्योंकि ये पानी तो फ्रीज होता है, अगर इसके सरफेस पे पोटाशियम की मात्रा ज्यादा है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये फ्रीज ही नहीं होगा, तो फ्रॉस्ट से इफेक्ट ही नहीं होगा. सो सम ऑफ द प्लांट्स विच सेव देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एक्शन, okay, bad weather, they have more potassium around their surface, so they do not allow the moisture to be formed around their surface, जिसकी वजह से वो certain diseases से भी बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आएगा वो सिंगल सेल है और उसके में पानी है, तो बैक्टीरिया आके इस पे बैठा, इसने बैक्टीरिया का पानी खींच लिया, बैक्टीरिया वहीं पे डेड, ओके, सो द प्लांट कैन सेव इटसेल्फ बिकॉज ऑफ पोटाशियम. So write down, तो पानी का जहां भी रेगुलेशन है, ड्रॉट आ जाए तब भी वो बचेगा, क्योंकि पोटाशियम की वजह से अपना पानी छोड़ेगा नहीं, इट विल कीप द वाटर टू इटसेल्फ, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी भी तो वो पानी, तो आप डिजीज, ड्रॉट, फ्रॉस्ट एक्शन सबसे बचाता है प्लांट को पोटाशियम, ओके, पोटाशियम प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स, potassium protects the plants from drought, frost, diseases, okay. now phosphorus अब लिख लीजिए, तो phosphorus के बारे में अब लिखिए, अब which of the following is used for fixing the light eye, ठीक है, which helps in fixing the light, और उसमें दोनों ऑप्शन अगर फास्फोरस और पोटाशियम है तो ये नंबर 1 है, बिकॉज इट प्लेज फिक्सिंग ऑफ सनलाइट, ओके, क्योंकि आप देखेंगे नाइट्रोजन भी क्या है, इसका रोल है, अगर ये ग्रीन ही नहीं होगा तो क्या है कि फिर भी वो सनलाइट को ले ही नहीं पाता, पोटाशियम का रोल है नाइट्रोजन का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉस्फेट, ओके, सो राइट डाउन phosphorus. Phosphorus is plays a dominant role. Phosphorus plays a dominant role. ठीक है, डोमिनेंट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे ताकि ध्यान रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है सनलाइट को फिक्स करने में. Phosphorus plays a dominant role
In the enzymes, phosphorus plays a dominant role in the enzymes, which help the crop, to fix the sunlight or fix the light energy, fix the sunlight or light energy okay. अब न्यूक्लियस में प्रोटीन का बना हुआ है तो नाइट्रोजन है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें क्या है, फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है. सो राइट डाउन, phosphorus is an integral part of nucleic acid. Phosphorus is an integral part of the nucleic acid. Phosphorus is an integral part of the nucleic acid. Phosphorus is an integral part of the nucleic acid. And hence, it is important for genetic information. And hence it is important for genetic information. Okay. अब जीन जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो अगर फास्फोरस की कमी होगी तो प्लांट का जो नेक्स्ट छोटा पौधा आएगा वो बीमार होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, वो मर जाएगा. ओके, सो द प्लांट्स फेल टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इफ द फास्फोरस इज नॉट अवेलेबल इन राइट क्वांटिटीज. तो उसके जो बीज होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं. ओके, और सीड टेक्नोलॉजी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा कहीं, तो दे आर सर्टेन सीड्स, ठीक है, विच एक जनरेशन में आपको बहुत अच्छा प्रोड्यूस देंगे, लेकिन उसी पौधे का जो बीज है, ठीक है, वो बहुत अच्छा ग्रो हुआ, लेकिन उसका बीज दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी कहते हैं. ओके, सो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजीज के बारे में आपने शायद सुना हो. ये बैन है आज की डेट में, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. Okay, the plant seed will not grow into plants. Okay, even when the outcome, even when the plant generating it was healthy, was की जगह is कर लीजिए, is healthy and qualitative. यानी इसका मतलब क्या है, यू सी ए मैंगो ट्री, ओके, you'll see a mango tree जिसपे बहुत अच्छे आम आए हैं, ठीक है, वेरी गुड क्वालिटी, मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बट इसकी गुठली आप लेके जाते हैं, प्लांट इट वोंट ग्रो. जबकि घरों पे हम क्या देखते हैं, जहां हमारे यहां होता है वो पेड़ से गिरता है और वहीं एक और प्लांट आ जाता है. ओके, सो दिस सीड दैट इज देयर, या यही आप धान के अगर दाने का देखेंगे, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत प्रोडक्शन हुआ, आप उसको ले जाके डालेंगे वो नहीं उगेगा. सो दीज आर टर्मिनेटर टेक्नोलॉजीज. व्हाट दे डू, दे टेम्पर विद द phosphorus availability to plants. Okay, so these most of them tamper with
nucleic acid via disturbing the phosphorus composition. Okay, so now this is terminator technologies are banned in India. Some of the countries still use it. Okay, क्योंकि ये क्या है, जो फाइनेस्ट ऑफ द क्वालिटी सीड्स वर्ल्ड में लोग जो बेचते थे. ओके, 97 तक हमने भी बैन नहीं किया था. 97 में वी बैंड इट. गर्ट टेक्नोलॉजी हम इसे कहते हैं. इट वाज मोर फेमस एज गर्ट टेक्नोलॉजी, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी और गर्ट टेक्नोलॉजी. ओके, so this is banned in India. Very good morning, Priya. Okay, तो they tamper with this thing. तो ये पूछा जा सकता है, बिकॉज एथिकली दिस इज नॉट गुड, क्योंकि गरीब फार्मर को आप अच्छे क्वालिटी एक बार दे के फिर उससे बहुत पैसा लेते हैं. सो 97 इंडियन गवर्नमेंट बैंड इट कि विल नॉट अलाउ गर्ट टेक्नोलॉजी टू वर्क इन इंडिया. नो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी इज अलाउड इन इंडिया. ओके, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. इसमें हम फॉस्फोरस के साथ खिलवाड़ करते हैं. ओके, फॉस्फोरस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर रूट ग्रोथ. रूट ग्रोथ में और ज्यादा रोल है इसका. तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, फॉस्फोरस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द रूट ग्रोथ. Phosphorus is also an important component for the root growth. Okay, so GERT वाला सभी ने लिख लिया है. Now sulfur. It is part of the enzymes. ठीक है, बहुत सारे एंजाइम जैसे न्यूक्लिक एसिड का जो टोटल कंपोजिशन है उसमें ये छोटे हर एक एंजाइम में एंड एमिनो एसिड्स. ठीक है, दीज आर बायोलॉजिकल टर्म्स. एंजाइम्स एंड एमिनो एसिड्स में आपका सल्फर होता है. सो दिस इज सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सल्फर इज एसेंशियल फॉर आस्था बेटा जल्दी जल्दी लिख लेंगे. Sulfur is essential for sorry, sulfur is essential for the amino acids and enzymes. Sulfur is essential for the amino acids and enzymes in the plants. विटामिन B1 जो होता है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत होती है. ओके, इट इज फाउंड इन विटामिन B1. इट इज फाउंड इन विटामिन B1. ओके, कैल्शियम क्या है, प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है. जब बड़ा होता है कोई तो इसका मतलब क्या है, व्हेन देयर इज ए स्मॉल किड ही हैज लेस नंबर ऑफ सेल्स, वो सेल डिवीजन होता जाता है तो क्या है कि दैट ग्रोज. तो प्लांट के साथ भी ऐसा ही है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है. सो सेल डिवीजन इज हैपनिंग. सो कैल्शियम के बारे में लिखिए. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ. The calcium is required for plant growth. Cell division. Okay, तो जो भी टिप वाला एरिया होगा प्लांट का, कोई टिप एरिया जहां से उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वहां कैल्शियम का बहुत ही बड़ा रोल है. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड शूट टिप्स. द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स
the growth of the root and shoot tips, the growth of the root and shoot tips is affected by calcium, is affected by calcium, is affected by calcium. Full stop. In fact, the growth of the pollen, the growth of the pollen, okay, जो छोटे छोटे कभी फूल को आपने क्या है बीच वाले हिस्से को निकालेंगे तो बहुत छोटे छोटे गोल गोल पार्ट्स दिखाई देते हैं, वही उड़ते हैं हवा में और उससे जाकर रिप्रोडक्शन होता है. ओके, तो राइट डाउन. इन फैक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉलेंस, in fact the growth of pollens is also heavily dependent on availability of calcium. In fact the growth of the pollens is also heavily dependent on calcium. Full stop. Calcium helps to reduce the fall of leaf. Okay, leaf fall पे भी इसी का dependent है. So you can write calcium helps with the leaf fall or helps to reduce the leaf fall. Okay. Next is magnesium. So magnesium is basically in chlorophyll and it helps to activate some of the enzymes. ठीक है, बहुत सारे एंजाइम काम ही नहीं करते हैं जब तक आपका मैग्नीशियम उस पर इफेक्ट ना डाले. So write down magnesium occurs in the chlorophyll. Magnesium occurs in the chlorophyll and helps in the activation of many enzymes, and helps in the activation of many enzymes. यहाँ तक क्लियर है एवरीबडी? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. इनमें से हर चीज जो हमने पढ़ी है वी हैव रेड बिकॉज दीज हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट. ये पास्ट में पूछे गए. सो नाउ like I had said कि some of the terminologies जो okay, तो some scattered topics we are only looking at because we are going to finish it off. ठीक है, आज प्रीलिम्स वाला सारा हिस्सा आज खत्म होगा. मेंस के लिए एक और लेक्चर में बस लूंगा कल. ओके, क्योंकि ये टर्म्स में क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज सम ऑफ दीज टर्म्स कीप रिपीटिंग. इफ यू लुक एट द PYQs then you'll see that they have been asked many a times. Now sun plant के कैरेक्टरिस्टिक्स, वे हम प्लांट का ही पढ़ रहे हैं. एंड सेड प्लांट जिसे आप कहते हैं, बहुत बार इनके कैरेक्टरिस्टिक को भी पूछा गया है कि क्या क्या होता है. दो वी हैव sunken stomata and all, we have seen when we were talking about the xerophytic characteristic. Okay, तो जो सन में होते हैं इन प्लांट्स को हम कहते हैं हेलियोफाइट्स. तो बेसिकली द टर्मिनोलॉजी दैट यू सी इन एग्जाम विल बी हेलियोफाइट, और सेड प्लांट जो होता है इसे हम कहते हैं सायोफाइट्स. वो छांव में रहते हैं. तो समटाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन आस्क्ड. तो हम एक कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं.
ओके, सो सन प्लांट नाम से ही आपको पता है, एडेप्टेड टू ब्राइट सनलाइट। ओके, और जिन्हें हम शेड कहते हैं, शेड का मतलब कुछ लाइट तो पहुंचता है, ऐसा नहीं कि जीरो सनलाइट। जीरो सनलाइट का मतलब क्या है कि डार्क हो जाएगा, रात, वो तो रात में भी मून की लाइट आती है। तो सायोफाइट्स आर नॉट लाइक कि दे डू नॉट वांट लाइट, दे वांट वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, दिन हो या रात हो, लाइट तो हमेशा रहती है। ठीक है, सो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे। नो लाइट ऐसा नहीं होता है, लो इंटेंसिटी लाइट, adapted to low intensity light। ओके, सो लाइट होगी बट कम होगी, वहां पे होगा। जीरो सनलाइट नहीं सोचेंगे कि रात में अपने मजे में चल रहा है। नो प्लांट कैन सर्वाइव इन कंप्लीट डार्कनेस, दिल डाई। ओके, अब इनके साथ क्या होता है, द स्टेम्स आर ऑलवेज हार्ड एंड स्मॉल, क्योंकि सरफेस एरिया छोटा होना चाहिए, या तो सरफेस बहुत हार्ड होगा या ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उनकी प्लांट की ग्रोथ ही बहुत कम हो जाएगी। सो स्टेम्स आर हार्ड एंड थिकर। बिकॉज सनलाइट से क्या होता है, बहुत गर्मी होती है तो पूरा बॉडी से पानी बाहर, ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज, तो ये अपने स्टेम्स को बहुत हार्ड और थिक कर लेते हैं। ओके, बट इनके साथ क्या है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू ट्राई टू रीच द सनलाइट, या किसी और के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट है। कम सनलाइट है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिवली फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, तो दे विल हैव टू ग्रो अराउंड समथिंग। और ऐसा ग्रो करना मतलब ईपीफाइट्स, जो घेर के पौधों पे चढ़ जाए, या जमीन पे इजीली मुड़ मुड़ के कैसे ग्रोथ करके ऐसी जगह पहुंचे जहां उसको थोड़ा फूड मिल पाए। सो दे आर ऑलवेज सॉफ्ट स्लेंडर। ओके, पतले होंगे और बहुत सॉफ्ट होंगे। मनी प्लांट को देखा है, सॉफ्ट एंड स्लेंडर स्टेम्स। गिलोय देखा है, गिलोय का पौधा, मनी प्लांट। ओके, अंबर बेल टाइप्स, सो दे आर सॉफ्ट, उनको आप फट से तोड़ सकते हैं, वो कहीं भी मुड़ जाएंगे, पेड़ पे घुमा दीजिए, दिल क्लाइम। ओके, अब यहां जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां क्या है, संकेन स्टोमेटा होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। सरफेस पे होगा तो बहुत पानी लूज करेगा, ऐसे ही मर जाएगा। So they have sunken stomata। Okay, this is at certain depth on the leaf। ये sunken stomata होगा। Okay, अब मोस्ट ऑफ द शेड प्लांट के साथ क्या है, यूजुअली जो धूप में रहते हैं प्लांट, उनका ओनली वन साइड हैज स्टोमेटा। ओके, संकेन नहीं भी हो तो स्टोमेटा क्या है, एक साइड में होगा। बट दीज प्लांट्स, मोस्ट ऑफ देम, ओके, शेड इन्वायरमेंट में रहने से कभी कभी क्या ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाता है, जितना पानी एब्जॉर्ब किया अंदर ही रह जाएगा। सो दे हैव बोथ साइड ऑफ द लीफ have stomata। Okay, so they are different in a way कि इनके दोनों साइड ही स्टोमेटा होता है बहुत बार। ओके, तो दीज फीचर्स कैन बी आस्क्ड। अब रूट क्या है, इसको पानी चाहिए क्योंकि वो गर्मी में है बार बार। सो रूट सिस्टम इज बेटर डेवलप्ड इन दीज।
बिकॉज दे आर बिग, हार्ड, हैवी। तो इनका जड़ भी मजबूत होनी चाहिए कि ये स्टैंड कर पाए। इनके साथ क्या, इनको खुद ही खड़ा नहीं रहना है, तो सॉफ्ट, जहां से खाना मिल जाए थोड़ा सा वहां पे रहेंगे। जहां फूड मिल गया बस वहीं से थोड़ा सा ले लो, जहां फूड मिल गया। सो होल ऑफ द पार्ट्स, यूल सी दैट ईपीफाइट्स कैसे होते हैं। इनके पत्ते हैं, पान का पत्ता जो होता है, ओके। अब यहां से ही जड़ भी आ जाएगी, रूट्स हर जगह दिखाई देंगे। आप नोट्स क्या है, रूट्स। सो रूट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द बॉडी, सो वेर एवर दे कैन फिक्स देमसेल्फ दिल फिक्स, दिल ट्राई टू ग्रो, फिर थोड़ा फिक्स कर लेंगे। सो रूट नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड इज स्प्रेड। ओके, दे हैव टू फिक्स देमसेल्व्स एनीवेयर। जिस पेड़ पे जा रहे हैं उसी पे से उनको खाना चाहिए। तो खाना क्या है, रूट जब पेनिट्रेट कर जाएगा बॉडी में किसी प्लांट के, तब वहां से वो सक कर पाएंगे। सो दे आर, रूट इज एवरीवेयर। वो छोटे छोटे रूट्स बहुत सारे क्या है मिलके पूरा एनर्जी देते हैं इसे, ओके। सो एवरीबडी इज क्लियर। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द बायोगैस। बायोगैस सुना है? बायोगैस, गोबर गैस सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ द एनर्जी सोर्स गोबर गैस? यूजुअली कि बायोगैस का ही फॉर्म है गोबर गैस। इट इज इंडियन इनोवेशन, ठीक है, इंडिया ने किया था। गोबर गैस प्लांट्स के बारे में तो सुना होगा। गोबर गैस सुना है कि नहीं सुना है? एटलीस्ट सुना ही नहीं है। बायोगैस इज बेसिकली एनी गैस वेर देर इज ऑर्गेनिक ब्रेकडाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां ऑक्सीजन नहीं होता है। जमीन के अंदर आप क्या है कि पिट बना के डाल देते हैं, ओके। सो इवन द टॉयलेट पिट्स दैट आर देयर, वहां भी गैस क्या है फॉर्म होती है वहां उनको, लेकिन वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है बैक्टीरिया, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे break down it, okay, and finally the gas that is released in the atmosphere is can burn, okay, क्योंकि मोस्टली उसमें क्या है मीथेन प्रोड्यूस होता है, okay, मीथेन प्रोड्यूस हो रहा होता है। so write down, biogas refers to a gas produced, biogas refers to a gas produced by the biological breakdown of organic matter, biological breakdown of organic matter in the absence of oxygen, in the absence of oxygen. सॉरी, हाँ, वो पेट्रोलियम के ऊपर भी जो गैस होती है वो भी क्या है ऐसे ही प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, डब्ल्यू बेटा उसमें रहता है, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व जहाँ होती है वहाँ भी ऑक्सीजन तो पहुँच नहीं रहा होता है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ओवर सेंचुरीज, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके। बट ये वाला जल्दी, ओके। breakdown of the organic matter in the absence of oxygen, okay.
तो ये नेचुरली बायोगैस का डेफिनेशन है। ओके, अब लेकिन ये वर्ड हम यूज किसके लिए करते हैं? अब जो ब्यूटेन प्रोपेन है उसके लिए हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। सो whenever we say talk about the biogas plant या गोबर गैस प्लांट, okay, so usually we must be talking about some small facility. Okay, so how it is produced? When it is being produced by the humans, हम जानबूझ के इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे हम बायोगैस बुलाते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन, इट इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन, यानी किसी चीज को सड़ा के, जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उसको सड़ने के लिए गड्ढे में कवर करके छोड़ दिया गया। इट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन, और एनारोबिक फर्मेंटेशन, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक कहते हैं। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल material like kitchen waste, kitchen waste, sewage, kitchen waste, sewage, एनीथिंग, म्युनिसिपल वेस्ट, ग्रीन क्रॉप्स, कोई भी जिसमें पहले लाइफ रही हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो दो लिखवा इन दोनों को छोड़ के, म्युनिसिपल वेस्ट, ग्रीन क्रॉप्स, किसी चीज को आप सड़ा दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ बायोगैस primarily contains methane and CO2, carbon dioxide. Okay, it is primary composition. Okay, लेकिन इसी के बायोगैस के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर नेचुरली आपने ये करने दिया तो इसमें प्राइमरीली कंटेन्स मीथेन एंड CO2। ओके, लेकिन इसमें अब अगर आपने गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर ली, ओके, गैसिफिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी जहां फोर्सफुली हम गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वुड गैस, इनके कंपोजिशन बहुत बार पूछता है। ठीक है, वुड गैस इज अ टाइप ऑफ बायोगैस। ओके, इफ गैसिफिकेशन ऑफ wood or other biomass is done. Okay, so this gasification technology is used. अब ये टेक्नोलॉजी में हमें नहीं जाना है, जस्ट रिमेंबर दैट गैसिफिकेशन इज डन। इफ गैसिफिकेशन वर्ड आया तो उसे हम वुड गैस कहेंगे। ठीक है, गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, देन इट इज दिस थिंग, बट इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सो प्राइमरीली गैसेस की अगर हम बात करें, वुड गैस में प्राइमरीली contains carbon monoxide, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, and only trace amount of methane. तो लोग पहले वुड गैस को भी यूज करते थे, बट इसमें बहुत ट्रेस अमाउंट था, तो बहुत सारी गैस होती थी, थोड़ा एनर्जी आप कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेयर more efficient thing can be done. Okay, now गोबर गैस इंडियन इनोवेशन है ये. स्मॉल एनारोबिक डाइजेस्टर्स आर मेड. ठीक है, and this is used. So write down, it is an Indian innovation. It is an Indian innovation. और इसमें आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है. ठीक है, एकदम प्योरली बायोगैस है ये. वुड गैस की तरह वेरिएंट नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम गोबर गैस बुलाते हैं क्योंकि ज्यादातर गोबर उसमें डाला जाता था. ओके, it is an Indian innovation where the biogas was produced, where the biogas was produced from the anaerobic digestion, where the biogas was produced by anaerobic digestion of the manure, of the manure, of the manure in small scale digestion facilities, in small scale digestion facilities, on small scale facilities. Okay, full stop. This system is so efficient. देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कितना ज्यादा मतलब परे हैं इन चीजों से, जो बहुत ही अच्छी चीजें हैं. ओके, जो पहले लोग करते भी थे अब बंद कर दिया क्योंकि अब गाय नहीं रखते हैं. ठीक है, गाय होने से लोगों को क्या फायदा था वो अभी आपको पता चलेगा इस स्टेटमेंट. 160 लीटर ऑफ गैस पर केजी ऑफ काउ डंग प्रोड्यूस होता था. ओके, तो जिसके पास 2 भी गाय है वो अपने घर का कभी उसका गैस का बिल नहीं आता. ओके, लाइट के बल्ब भी जला लेते थे लोग. ओके, so about 160 liter of gobar gas, about 160 liter of gobar gas is produced by per kg of cow dung is produced by per kg of cow dung and this system is so efficient. This system is so efficient that the leftover residue, acts as a very productive manure in the field. ओके, मैंने काउ इसको आपने बंद कर दिया. इट इज क्लोज्ड, यहां छोटी पाइप लगाई,
और आपने गैस निकाल लिया, ओके, द गोबर गैस, primarily methane plus CO2 plus trace amount of other gases. And this is the manure. Okay, so this is again used in the fields. This is source of energy, food, generate electricity. बट डब्ल्यू बेटा वेरी गुड, आपके यहाँ यूज नहीं होता है तो वो यूज होना चाहिए आपके घर के, काफी चीजों का बिल कम हो जाएगा। ये जो हल्ला होता है कि गैस की कीमत बढ़ रही है, अगर ये चीज आज भी लोग यूज करते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व हो जाती। ओके, एंड दिस वाज इंडियन इनोवेशन एंड देयर वाज अ टाइम इन लेट 1970s व्हेन इट वाज स्टार्टेड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गैस फैसिलिटीज गांव में यूज करके लोग खाना बनाते थे, आज की डेट पे ये काम नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लमेटिक तो है। ओके, so tell me what is the importance of this biogas? What is the importance of biogas? बायोगैस का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो फ्यूल में यूज होता है, यही है। ओके, सेकंड क्या है, इट डज नॉट क्रिएट एडिशनल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इससे बहुत कम है। क्लीन ब्लू फ्लेम है तो एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। ओके, सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आप ये जो गांव में लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली काउ डंग केक यूज करके जलाते हैं, तो एक काउ डंग केक से जितनी एनर्जी हो, जितने अमाउंट से होती है, बायोगैस से 5 गुना ज्यादा एनर्जी। इट मीन्स 5 टाइम्स मोर हीट। यानी आप जितना उससे अगर एक बार खाना बना पा रहे हो, उससे 5 बार खाना बना पाएंगे। हाँ बेटा, वेस्टेज भी कोई नहीं है। सो सम ऑफ दीज आर। और बायोगैस निकालने के बाद जो मेन्योर यूज होता है, पहले अगर आप उसको डायरेक्ट खेत में डालेंगे मेन्योर को, तब भी वो प्रोडक्टिविटी देगा, बट इट इज सीन दैट व्हेन बायोगैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, then the productivity of that thing is 43% more, यानी almost 50% better fertilizer हो जाता है वो। okay, so write down the methane gas present in the biogas acts as a fuel. The methane gas acts as a fuel. Okay, second, biogas provides 5 times more energy. Biogas provides 5 times more energy. Provides 5 times more energy.
then the direct burning, then the direct burning of same amount of cow dung cakes, direct burning of the same amount of cow dung cakes, direct burning of the same amount of cow dung cakes. Okay. Next one. Biogas is generated from locally available material. Biogas is generated from the locally available material. Biogas is generated from the locally available material. Like animal dung, vegetable waste, like animal dung, vegetable waste, agricultural waste, etc. Full stop. So next point, it helps in the waste management. It helps in the waste management, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या आप बाहर फेंकते हो तो इसी को आप कूड़ा समझते हो, लेकिन इन्हीं को क्या है कि आपने उसमें डाल दिया तो मैन्योर बन गया प्लस गैस भी मिल गई. It helps in the waste management. Next, the fertilizer or the manure left after extracting the biogas, the manure left after extracting the biogas has 43% more strength, has 43% more strength than dung used directly as manure, than dung directly used as manure. ठीक है, वो भी है. प्लस इट इज ए इफिशिएंट फ्यूल, ना इसको जलाने से कोई स्मेल आती है, ना कि इसका प्योर ब्लू फ्लेम में जलता है. ओके, तो वेरी इफिशिएंट फ्यूल. धुआं नहीं होता है. काउडंग केक जलाइए, धुएं से खांसते खांसते हालत खराब हो जाएगी. ठीक है, और उसकी वजह से पहले महिलाओं की बहुत डेथ होती थी. मे बी इफ यू हैव visited your villages and seen some of the people who do not use gas, what they do, they put cow dung cakes और एक पतला सा पाइप जैसा होता है जिससे वो फूकते थे आग जलाने के लिए, जिससे बहुत धुआं आता है. तो महिलाओं को क्या है कि वो धुआं लंग्स में जाता था. एंड many of the women met prematured deaths. ठीक है, उनका बहुत जल्दी डेथ होती थी, पेनफुल डेथ होती थी लंग में प्रॉब्लम होने की वजह से. Okay, so write down biogas is a clean fuel. Biogas is a clean fuel. Biogas is a clean fuel which burns without any smoke. Which burns without any smoke or any odor. हाँ भाभ्या बेटा, respiratory problems or any odor. Odor माने smell, ODOUR. order वाला order नहीं, odor, ODOUR यानी smell, ODOUR, odor. And produces no ash. ठीक है, राख भी नहीं होती है. Produces no ash. Now, what is solar refrigerator?
सोलर पावर से जो रेफ्रिजरेशन होता है आजकल, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस। सोलर रेफ्रिजरेटर क्या है? धूप से तो गर्मी होनी चाहिए, पर सोलर रेफ्रिजरेटर क्या है? सोलर कुकर होता है। धूप से क्या है कि ग्रीन हाउस गैस से खाना पका लिया, हीट को रोक के। सोलर हीटर होता है, पाइप लगाते हैं, उसको काले रंग से पेंट कर देते हैं, धूप निकलती है तो वो गर्म हो जाता है। बट सोलर रेफ्रिजरेटर क्या है? जहां लाइट नहीं पहुंचती है, बहुत सारे लोग जगह कैसे है, पहाड़ों में दवाइयां ले जानी है आपको और स्टोर करके रखना है, कैसे करते थे? धूप हर जगह पहुंचती है। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया। अब तो इंडिया में लाइट बहुत सारी जगह पहुंच रही, लेकिन जहां पे आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी है, अफ्रीका में, इंडिया में भी कुछ हिस्सों में, जहां रेफ्रिजरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में आप रेफ्रिजरेट कैसे करेंगे? सो सोलर एनर्जी का इफेक्ट क्या है? एमोनिया सुना है आपने, अल्कोहल जानते हैं, शराब। आप यूजुअली अल्कोहल बोलते ही शराब सोचते हैं, बट दिस इज बेसिकली इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सारे क्या है, अल्कोहल के पार्ट्स है। ओके, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, तो ये क्या है कि केमिकल कंपोजिशन है अल्कोहल की। ओके, सो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो लोग शराब के रूप में पीते हैं, या नशा या दवाइयां जो है। अगर वही मिथाइल अल्कोहल हो जाता है तो लोग अंधे हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो बिहार में अभी फिर से सुनाई दे रहा हुआ है। पहले भी हुआ था, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल अगर बन जाता है फॉर्मेशन के टाइम में, तो लोग मर जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। वही अगर प्रॉपरली लोग बनाते हैं, जिनको नॉलेज है, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर होता है, तो वो इथाइल अल्कोहल बनता है, जिससे आपकी दवाइयाँ और शराब, देसी शराब या नॉर्मल शराब भी, वो इथाइल अल्कोहल है। ओके, सो एमोनिया का यूज करके एंड सम फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल, ओके, विच इज बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन अल्कोहल कहा जाता है। तो ऐसी जगहों पे जहां लाइट नहीं पहुंच सकती है, सो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स आर देयर। वहां धूप की रोशनी को जब आप एमोनिया गैस को और कार्बन एक्टिवेटेड अल्कोहल को यूज करते हैं, तो वो रेफ्रिजरेशन ठंडा इतना कर देता है कि दवाइयां खराब नहीं होती। ओके, सो राइट डाउन अबाउट सोलर रेफ्रिजरेटर। ओके, सो सोलर रेफ्रिजरेटर solar refrigerator uses the heat uses the heat to evaporate the fluids like ammonia, ammonia, water, water, and alcohol, and alcohol, हाँ W बेटा, and alcohol, ammonia, water, and alcohol from their mixtures, from their mixtures. Okay, full stop. Mostly aqua ammonia, mostly aqua ammonia,
and carbon activated alcohol and carbon activated alcohol is used in the process. कार्बन एक्टिवेटेड अल्कोहल इज यूज्ड इन द प्रोसेस. अभी आप पानी भी इवापोरेट होता है, हमारा पसीना आए और पंखा चलाते हैं तो वो इवापोरेट होता है तो हमें ठंडा लगता है. तो यही एक्वा एमोनिया और कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन जब ये होते हैं तो ये टेम्परेचर को और ज़्यादा ड्रॉप करते हैं. ठीक है, तो एकदम चिल वाली इफेक्ट हो जाती है. ओके, फुल स्टॉप. द सोलर रेफ्रिजरेटर्स आर इफेक्टिवली यूज्ड. The solar refrigerators are effectively used in cold storage. The solar refrigerators are effectively used in the cold storage. In the cold storage plants. Cold storage. Effectively used in the cold storage plants. For the storage of life-saving drugs. For the storage of life-saving drugs, vaccines, life-saving drugs, vaccines. पेरिसेबल डेयरी. ठीक है, दूध को भी बचा के रखना है. सो पेरिसेबल वेजिटेबल्स डेयरी जो खराब होने वाले हैं. पेरिसेबल डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. पेरिसेबल डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स in remote and unelectrified areas. In remote and unelectrified areas around the world. In remote and unelectrified areas around the world. ठीक है, तो ये सिर्फ भारत में ऐसा यूज हो रहा है ऐसा नहीं है, ये दुनिया के हर एक हिस्से में यूज होती हैं चीजें. ओके, so this is something that you need to know and I hope that you are able to get कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं. ओके, and beyond these आपको क्या है कि न्यूज़ पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ये बार बार क्या होता है, चीज़ें बहुत अपडेट होती हैं, बार बार चीज़ें बदलती हैं. फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने in the course duration only we have seen that the government changed the rule for e-waste management. इसी कोर्स में हमने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 देखे और फिर गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली 1 अप्रैल से चेंज करके नए रूल्स ले आ दिए. ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 हो गया. ठीक है, तो 1 अप्रैल से उसको कर दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना होगा. ओके, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि न्यूज़ में क्या देखना है. ओके, तो ऑल टाइप्स क्या है कि इन्वायरमेंट में बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या देखना है. सो आई टॉक अ लिटिल अबाउट दिस एस्पेक्ट. स्टैटिक पोर्शन हमारा खत्म हो गया है. ओके, सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो छोटे मोटे होंगे कुछ आपको PYQs में मिल जाएंगे, और जो अब न्यूज़ में आएगा उस पर फोकस करिएगा. ठीक है, डू नॉट वेस्ट your time running behind more material, because static more or less you'll see that PYQ, the notes that you have made from my lectures, that will be more than sufficient. इसके beyond आपको नहीं भागना होगा. okay, इसके beyond आपको नहीं चाहिए होंगे चीजें. तो यहाँ तक क्लियर है. करंट अफेयर्स में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है, फॉर प्रीलिम्स ओनली. मेंस स्पेसिफिक विल डू टुमारो. टुमारो सेशन विल बी डेडिकेटेड टू मेंस एंड आई विल टीच यू हाउ टू go about the things which are related to environment and ecology, how to write a good answer if there is a question, and what kind of questions they have been asking
नाउअडेज, ठीक है, कि वो एग्जैक्टली आप इकोलॉजी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी कह सकते हैं कि क्या है, विल सी टुमारो। सो अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं जो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे लिख लें। फर्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड, ओके, जो होती हैं उन पे आपको क्वेश्चन आते हैं। हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े, ठीक है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव कवर्ड। पहला मैंने कहा प्रायोरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड वन इज लाइक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंसीज जो हमें बताती हैं, जिसको आप जानते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो दे आर डूइंग सम ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी हाइड्रोसॉस न्यूज में, ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, ओके। सो अब यूएन सॉस इज इन न्यूज, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्रेंस करवा रही है और वो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को यूज करती है जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आप देखेंगे हाइड्रोसॉस 95% चांसेस है पेपर में दिखाई देगा, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो हाइड्रोसॉस इज इन न्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट। ये अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये वर्ड? बिकॉज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पानी की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, ओके। सो एवरी कंट्री हैज सम हाइड्रोलॉजिकल डेटा, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल डेटा, ठीक है, या जिसको आप नेशनल हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज भी एक है। सो हाइड्रोसॉस इज दिस असेसमेंट ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ एवरी एरिया, पानी का जो है। अब सॉस मैसेजेस हम कब भेजते? जब कुछ इमरजेंसी हो, ओके। सो ये क्या करने वाली एजेंसी, जो ये चीज हाइड्रोसॉस अभी न्यूज में है, सो दे विल वांट द वर्ल्ड कि हाउ बिग प्रॉब्लम इज द वाटर प्रॉब्लम, ओके। सो ऐसी टर्मिनोलॉजीज। अब इसी में क्या है कि कुछ प्लेज भी करते हैं लोग, ओके, सम टारगेट्स आर देयर। जब भी कॉन्फ्रेंस हो, सम टर्मिनोलॉजी इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा टर्म पूछ सकता है, सेम कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हाइड्रोसॉस न्यूज में, सो W12 प्लस ब्लूप्रिंट, ये टर्म है। तो कॉन्फ्रेंसेस क्या है, वो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज देते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बाय सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे थ्रो सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो आपको हाइड्रोसॉस नहीं तो W12 प्लस ब्लूप्रिंट। ये मैंने कहा ये आपका यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में है। या तो आपको यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस पे सीधे क्वेश्चन आएगा कि इसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, या फिर आपको ये टर्म्स पूछे जाएंगे, हाइड्रोसॉस क्या है, W12 प्लस ब्लूप्रिंट क्या। तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, कौन सी कंट्री है नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो न्यूज आइटम आते हैं, ओके, या W12 प्लस ब्लूप्रिंट। अब वाटर चैलेंज भी सबसे बड़ा कहां पे, अर्बन एरिया, ज्यादा पॉपुलेशन है, जगह छोटी है, कंक्रीट बना दिया, वाटर टेबल रिचार्ज नहीं होता, प्लस पानी जमीन से बहुत निकाल के यूज किया। तो अब इसमें पूछेगा ये अर्बन है रूरल है। तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स कि हाइड्रोसॉस इज फॉर, वाटर 12 प्लस ब्लूप्रिंट इज फॉर, ओके, इट इज फॉर अर्बन एरिया और दिस एरिया रूरल एरिया। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी एंड दिस इज इन न्यूज, ठीक है। तो न्यूज में कैसे देखना है वो मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट, इफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, if some important conferences are happening around the world,
जिसके लिए आपको खोज खोज के बहुत रिसर्च नहीं करना है, मैगजीन वाले ये काम आपके लिए करते हैं. जस्ट हैव टू फोकस ऑन कॉन्फ्रेंसेस ऑन द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दिस. और अगर इस ब्लूप्रिंट में हमारे इंडिया का कोई है, ठीक है, बिकॉज पेपर तो इंडिया वालों का ही होना है, सिविल सर्वेंट आपको इंडिया में बनना है, या फिर फॉरेन सर्विस में भी जाएंगे तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. सो इंडिया की अगर कोई सिटी है, ठीक है, जो इसमें इन्वॉल्व है, सो इसमें आपको वो देखना है. अब इसी कॉन्फ्रेंस में एक फंड बनाया गया, वाटर फॉर वुमेन फंड. अब ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाटर तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, बट विमेन गेट्स मोर इंपैक्टेड. ये जेंडर का भी मुद्दा हो गया, तो ये बड़ा मुद्दा है. सो सेम न्यूज आइटम हैज 3 टर्म्स, और ये टर्म्स के हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, क्या है क्या है क्या है, 3 चीजें जाननी है. वाटर फंड बना दिया. सो अब इसमें क्या करते होंगे ये पूछेगा, या इस फंड में कौन पैसा देगा ये पूछेगा. 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. And these are big things. Wherever any magazine you'll read about this thing, ये 3 टर्म्स आपको वो अलग से मैगजीन वाले भी देते हैं. सो अब इस पे आपको देखना है. अब इसमें लीड कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है कि नहीं, इंडिया नहीं कर रहा हो, ग्लोबल है, कोई भी कर सकता है, तो उसके बारे में देख लेंगे. ओके, सो इफ यू आर अप्रोचिंग द थिंग्स इन दिस मैनर, यू कैन ईजिली कवर द थिंग्स जो टफ आपको बताए जाते हैं. अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें भी क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया है कि नहीं है. ओके, सो ब्रॉडली आपको देखना है कि क्या हो रहा है. ओके, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, अभी चीता पकड़ के ले आए, दैट इज इंपॉर्टेंट. फूड चेन, फूड वेब में चीता का रोल है. तो चीता पहले था कहां, अब कहां आया है, कहां से आया है, दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. चीता का रोल क्या है पहले तो टॉप कार्निवोर में से एक है. ओके, टर्शरी लेवल का, जो फूड चेन को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को इंडिकेट करता है. तो वो बेसिक में हमने पढ़ लिया है. बट चीता क्या है कि बांदीपुर में पहले खत्म हुआ. हाँ भव्या बेटा, बांदीपुर में खत्म हुआ, कूनो नेशनल पार्क में ले आ दिया गया. तो बांदीपुर में क्या सिचुएशन है, कूनो में क्या है, कहाँ पे है, तो बांदीपुर और कूनो दोनों को पढ़ लेंगे. अभी टाइगर सेंसस हुआ है, मोदी जी ने भी बोला है कि 3000 से ज्यादा हो गए. तो सुंदरबन, अब सुंदरबन में नेशनल पार्क है. सुंदरबन तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर हो रहा है, बट सुंदरबन नेशनल पार्क, नेशनल वर्ड यूज हुआ है तो भारत का है. तो उस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे. क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर जहाँ है उसके बारे में पूछ सकता है, वहां नेशनल पार्क है. तो वो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि नेशनल पार्क, नेशनल वर्ड बना हमारा है, हमारा, ठीक है. सुंदरबन इज शेयर्ड, लेकिन नेशनल पार्क एक छोटा सा हिस्सा है. सुंदरबन जो इंडिया में पड़ता है, उसका एक हिस्से का नाम हमने सुंदरबन नेशनल पार्क रख दिया है. हाँ आस्था बेटा, तो दीज काइंड ऑफ न्यूज वो आप लोग फॉलो करते रहिए. ठीक है, आपको एग्जाम देना है, पढ़ते जाएंगे, जब जब न्यूज में आएगा उसको आगे आप कवर करते रहिए. ठीक है, क्योंकि अभी चीता न्यूज में है, मैं अगले बैच में पढ़ाऊंगा, चीता न्यूज में नहीं रहेगा. तो अब मैं चीता को फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि चीता पुरानी कहानी है. लेकिन जो बच्चा इस बार एग्जाम देगा उसको पता है कि चीता जरूरी है, तो कूनो भी पढ़ो, बांदीपुर भी पढ़ो. ओके, सो यू हैव टू रीड अबाउट सच थिंग्स. अब कोई थ्रेट हो जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, या कुछ अच्छी चीज, नई चीज मिल जाती है. तो अभी एक छिपकली मिल गई, तो छिपकली मिल गई, वो इंपॉर्टेंट के साथ साथ कहाँ मिली है वो जगह भी इंपॉर्टेंट है. अभी नीलगिरी में मिल गया है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेंगे. सो सारे बायोस्फीयर रिजर्व आप नहीं पढ़ सकते हैं. साल में 15 जानवर खोजे जाते होंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो इंडिया में 5-6 ही खोजते हैं. तो उस 5 जानवर के साथ साथ क्या है, जहां वो खोजा गया उस जगह के बारे में भी पढ़िए. ओके, प्लेस स्पेसिफिक होगा या फिर जानवर के बारे में पूछ लेंगे. ओके, कोई बर्ड मिली है तो बर्ड के बारे में,
माइग्रेटरी बर्ड कहीं जाके रुकी, लोगों ने उसे मार दिया या उसकी पॉपुलेशन कम आई, पहले ज़्यादा आती थी इस साल आई नहीं। तो लेक वेक के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे कि जियोलॉजिकली कैसा है, वो बर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट इज टुडे वेरी इजी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको खुद बैठ के नहीं खोजना है। और जो बच्चा आज न्यूज़पेपर में मैं खुद ही खोजूंगा हर न्यूज़, मैं मैगजीन नहीं पढ़ूंगा, तो आप अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी टॉपर ने बोला कि मैं न्यूज़ रोज पढ़ता था, तो उसने पढ़ता था बोला था, न्यूज़पेपर से रिवीजन भी कर रहा था, ऐसा कोई टॉपर बोल रहा है? इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया। हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ते थे, कोई बोलता है तो आप सोचते पूरा पेपर बैठ के 4 घंटे पढ़ ही रहा है। नो बडी इज डूइंग दैट थिंग। आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिससे ब्रॉड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटे मोटे न्यूज़ आइटम लिया, लेकिन अल्टीमेटली एवरीबडी नाउ ए डेज, पुराने टाइम की बात ही अलग है। मैगजीन इतनी थी ही नहीं, तो कोई मैगजीन नहीं पढ़ता, सब न्यूज़पेपर काट रहे होते थे या लिख रहे होते थे। आज की डेट पे स्मार्ट बनेंगे। जब लोग 1-2 साल में निकाल रहे हैं, तो आपको 5 ईयर प्लान के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली समय आपका जाएगा, आपके घर वालों का जाएगा। पास होंगे तो मजे आपको आएंगे, आपके घर वालों को आएंगे। फेल होंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी आपका है। ठीक है, आप किसी से बोलेंगे या मुझे ही कहेंगे तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसा होता है, क्योंकि बहुत मेजोरिटी तो फेल हो रही है ना। तो वो सांत्वना देना अलग चीज होती है। बट इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ लेना, क्योंकि आप उससे ऐसे अच्छा लिख पाते हैं। बट अगर न्यूज़ आइटम का कुछ एनालिसिस, क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो 10 लोग मिलके कर रहे हैं। आप एक तेज हो सकते हैं, आप सुपरमैन नहीं है। सो एनी मैगजीन दैट इज कमिंग आउट, एटलीस्ट 10 to 20 पीपल आर वर्किंग ऑन दैट मैगजीन। 20 लोग मिलके एक मैगजीन निकाल रहे हैं, तो 20 लोग आपसे तेज हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट। आप हो सकता है अकेले बहुत स्मार्ट हो कि हर एक बंदे से या हर एक लड़की से, लेकिन आप 20 लोगों के बराबर नहीं हो सकते। तो गो फॉर द मैगजीन, रीड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, उससे आपका एस्से में लिखने में आसानी होगी, एस्से सुधर जाएगा। ओके, और थोड़ा सा ईमानदारी से रिवीजन कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता प्रीलिम्स में, अनटिल एंड अनलेस यू आर लाइक और पढ़ लेते और भूलते जाते हैं। अभी हम लोग जिस बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूँ, पर्सनली कुछ बच्चों को करता हूँ, ठीक है, लाइक मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम है या मेंटरशिप का प्रोग्राम है, 1-to-1 बात होती है बच्चों से। 90% ऑफ देम जो अभी रो रहे हैं बिफोर प्रीलिम्स, दे आर द पीपल हु आर नॉट रिवाइजिंग। जो रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, उनका दिसंबर में उन्होंने पढ़ के खत्म नहीं किया, उनका अब खत्म हो रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे बार बार रिवीजन करते हुए, अप्रैल मई जून में एग्जाम है, तो वो अप्रैल तक थोड़ा थोड़ा नया पढ़ते हुए, पुराने वाले को ज़्यादा रिवीजन करते हुए वो कंफर्टेबल है, वो पास भी हो जाएंगे। पर बहुत सारे लोग कैसे थे कि दिसंबर में ही खत्म हो गया। अब पूछता हूँ कुछ याद है, बोलते कुछ याद नहीं है सर, उस समय रिवीजन नहीं किया, तो वो पास नहीं होंगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो कि तेज पढ़ के खत्म करने में कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवर वो है जिसको दिमाग में याद रहेगा। याद किसको रहेगा? जिसने रिवीजन किया है। ओके, और रिवीजन बिना किए हुए होता तो बिलीव मी आप साइंटिस्ट होते। ऐसा अगर कोई है तो वो न्यूज़ में दिखाई देता है, वो साइंटिस्ट होता है, वो बहुत फेमस होता है, बी कंपटीशन में जाके ये होता है, या छोटा सा वो बच्चा जो पूरे दुनिया कैपिटल बता दे रहा है, तो वैसा टाइप के आप लोग फेमस आदमी होते। आप 99% ऑफ यू आर एवरेज पीपल, हम जैसे लोग जिसको रिवीजन चाहिए याद रखने के लिए। और 0.01% जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज है, उसका मैं मास्टर नहीं हूं। जो मैं खुद नहीं हूं वो मैं दूसरे को बता नहीं सकता हूं। तो हम जस्ट आई नो अबाउट एवरेज पीपल, जो थोड़ी मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम सब हैं। एवरी इंडिविजुअल दैट इज देयर, focus on the revisions and you'll be able to do. And tomorrow we'll start with मेंस वाला टॉपिक। आज सारा खत्म हो गया है लगभग। कल हम मेंस में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे एंड विल बी डन विद द सिलेबस। ओके, सो आई टेक योर लीव हियर ओनली एंड विल मीट टुमारो। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।